So in question number 12, two dice are thrown simultaneously. If X denotes the number of sixes, find the expectation of X. Find the expectation of X. Two dice are thrown. Two dice are thrown. अगर दो डाइस फेंका गया है, so in this case, the sample space will consist of 1, 1, 1, 2, 1, 3, and so on. We have total 36 option. 6, 6. So n of s is equal to 36. If X denotes the number of sixes, X denotes the number of sixes, find the expectation of X. What is X denotes? The number of sixes. Number of sixes. Then find the expectation of X. तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बोला find the expectation of X. To calculate expectation or else variance, we need to have the probability distribution. So here I'll make the probability distribution table, which consists of two values. It is X and it is probability of X. अब यहाँ पे X denotes the number of sixes. अगर तुमने दो डाइस फेंका है तो हो सकता है दोनों पे 6 आए, हो सकता है किसी एक पे 6 आए, या हो सकता है 6 आए ही नहीं. It will be 0 option. ठीक है. So we have 0, 1, 2. So there are total 3 option of X. अब नीचे will write the probability. तो जो भी probability रहेगी it will be out of 36. I want 2 sixes, मतलब दोनों डाइस पे 6 आना चाहिए. तो 6, 6, there is only one option out of 36 which will have 2 sixes on 2 dice. We have 1 out of 36. दूसरा बोला है 1 sixes. What it is given? 1 sixes or 1 6. यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस ड्रॉ कर दिया. दिस इज माय सैंपल स्पेस containing 2 sixes. So we have only one option where we have 2 sixes, 6, 6. So that is 1 by 36. Now I want 6 on one of the dice. सिर्फ एक ही डाइस पे होना चाहिए. तो we have this, 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 this. These are the 5 options which consist of 1 6 on the first dice. Also we can have the 6 on the second dice. 1, 2, 3, 4, 5. 5 option this and 5 option this. We have 10 options which consist of only 1 6 on one dice. So it will be 10 out of 36. Now फिर जो अंदर के टर्म्स बचे 1 2 3 4 5, 5 multiplied by 5, there are 25 option. So 25 option out of 36 are having no sixes on the dice. So once we have made this probability distribution table, probability distribution, then we can make the expectation of X. तो उसके लिए तुम्हें X का कॉलम चाहिए, P का कॉलम चाहिए, और we want only PX, एक ही कॉलम चाहिए, या XP बोलेंगे तो भी चलेगा. It is X into P. X की वैल्यू है 0, 1 and 2. P is having value 25 by 36, 10 by 36, 1 by 36. मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 by 36, 2 by 36. We'll add XP का addition, 10 plus 2. Denominator same है, तो 12 by 36. It is what? 12 by 36. Now we'll calculate expected value of X, E of X. The formula is summation of XP, and XP का summation is what? 12 divided by 36, which is 1 by 3, and that's my answer. So this is the way to calculate the expected value of X. Expected value of X. Okay. This is question number 12. Now question number 13. Two numbers are selected at random without replacement
from first 6 positive integer, from first 6 positive integers, let x denotes the larger of the two number. Find e of x. तो यहाँ पे तुम्हें भी expected values of x निकालना है. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive numbers. The first 6 positive numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जिसमें से तुम्हें दो नंबर सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तुम वो नंबर चूज नहीं कर सकते. मतलब अगर मैंने एक लिया तो दूसरा नंबर एक फिर से नहीं ले सकता, बिकॉज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. सेम नंबर आई कैन नॉट टेक. ठीक है, आई कैन चूज द अदर वन. तो अगर देखा जाए तो वन के कितने ऑप्शन है, इट विल बी 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Similarly, we'll calculate 2, which is 2,1, 2,2 नहीं आएगा अभी, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6. Then 3 choose करेंगे, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,3 नहीं आएगा, सॉरी रिपीटेड नहीं करना है, 3,4, 3,5 and 3,6. Then 4 का स्टार्ट करेंगे. तो इट इज 4,1, 4,2. हर एक के 5 ऑप्शन आएंगे. 4,3, 4,4 नहीं, 4,5 and 4,6. Similarly 5 के 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6 and the last option is 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 and 6,5. That's it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 multiplied by 5. So we have total 30 option. तो जो भी कुछ चूज करना है इसमें 30 में से चूज करना है. क्वेश्चन बोला है x, what is x denotes? It denotes the larger of the two number. So here we'll write what is my x, larger of the two number. X denotes the larger of the two number. So let's start framing the table. So here I am writing x and here I am writing probability of x. एक्चुअली 1,1 तो नहीं है, तो 1 कभी लार्जर होगा नहीं. तो अगर 1,2 अगर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है तो 2 इज द लार्जर. इसका मतलब 1 लार्जर पॉसिबल नहीं. तो आई विल स्टार्ट टेकिंग माय x एज 2. तो 2, 3, 4, 5, 6. अभी लार्जर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ. अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ तो 2 इज द लार्जर. 1,3 ले रहा हूँ तो 3 इज माई लार्जर. मतलब बेसिकली इन दिस केस 3 इज माई लार्जर. इस टर्म में मेरा 4 लार्जर है. तो जो भी तुम्हारे पास दो वैल्यूज दिए पेयरिंग में दिए, तो अगर 1,4 लिखा तो इसमें 4 इज माई लार्जर, 1,5 लिखा तो 5 इज माई लार्जर एंड सो ऑन. तो मुझे भी ये पता करना है कि 2 कब कब लार्जर होगा, 2 की वैल्यू कब कब लार्जर है. तो 1,2 ये एक केस हुआ और 2,1 ये एक केस हुआ. ये दो केस में 2 इज द लार्जर वन. तो 2 के लिए 2 लार्जर कब कब रहेगा इन दो केस, दैट इज 2 आउट ऑफ 30. 3 कब लार्जर है, देखो 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1,3, 2,3, 3,2, 3,1. ये चार केसेस में 3 लार्जर रहेगा. तो बेसिकली इट विल बी व्हाट 4 आउट ऑफ 30. 4 कब कब लार्जर रहेगा, देखो सेट में 4 कहाँ आ रहा है और 4 लार्जर भी होना चाहिए. 1,4 में 4 लार्जर है, 2,4, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. तो 6 केसेस में 4 लार्जर है. 5 कब लार्जर है, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. इस 8 केसेस में 5 लार्जर है, दैट इज 8 आउट ऑफ 30. और बाकी जो 6 है 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, फिर 6 का पूरा सीरीज स्टिल 6 5. इस केसेस में 6 लार्जर विच इज 10/30. तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है. नाउ आगे तुम्हें क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट. क्वेश्चन में फाइंड ई ऑफ एक्स, बस एक ही कॉलम और बनेगा. तो इसका जस्ट मैं यहाँ पे हिंट लिख दे रहा हूँ. क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स ही बोला निकालने के लिए. तो ई ऑफ एक्स निकालने के लिए विल राइट एक्स की वैल्यू वर्टिकली, देन पी की वैल्यू वर्टिकली, देन एक्स और पी का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स और पी का जो भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे. ठीक है. और क्वेश्चन पूछा था ई ऑफ एक्स, तो इट इज व्हाट, सम ऑफ एक्स पी. तो जो एक्स पी का जो सम आएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एक्स पी का जो सम आया था, दैट्स माय आंसर विच विल रिप्रेजेंट माय ई ऑफ एक्स, which will represent my e of x. Now in 14th question, let x denote the sum of the number obtained when the two fair dice are rolled. Find the variance of x. यहाँ पे तुम्हें variance of x पूछा question में. So here I have drawn the sample space consists of total 36 outcome. What is x represent? X denotes the sum of the number obtained. मतलब x represent the sum of number obtained. और मुझे क्वेश्चन पूछा वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना, विच इज VAR ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स. स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर दिस क्वेश्चन x represent the sum of the number obtained. Obtained. तो यहाँ पे I will write x and here I will write p of x. तो सम मीन्स बेसिकली एडिशन. तो अगर तुमने 2 डाइस फेंका तो इसमें से कोई भी आउटकम आ सकता है. 1,1 भी आ सकता है, 1,2. समझो 1,1 आया तो एडिशन कितना हो रहा है, 1 + 1 2. दिस इज कॉल्ड एज एडिशन. तो जब तुम 2 डाइस फेंकते हो उसके ऊपर जो भी नंबर्स आ रहे हैं तुम्हें उनको ऐड करना है, एंड दैट इज माय एक्स. तो मिनिमम जो आएगा इट विल बी 1,1, दैट इज 2. तो जो x की वैल्यू रहेगी मिनिमम 2 रहेगी, और मैक्सिमम जो आ सकता है डाइस पे 6,6 विच इज 12. तो मैक्सिमम सम जो आएगा वो 12 रहेगा. तो 2 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So I can have any outcomes of these. Now we'll write probability of x. 2 आने के लिए कितने ऑप्शन है, मतलब सम 2 कब रहेगा, जब इट इज 1,1 ओनली. We have only 1 out of 36. 3 आने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 1 और 1 2. 2 1 भी 3 होता, 1 2 भी 3 होता. वी हैव 2 ऑप्शन आउट ऑफ 36. देखो यहाँ पे एक पैटर्न आता है, इंक्रीज होते रहेगा. 4 आने के लिए 3 1 2 2 1 3, दैट इज 3 आउट ऑफ 36. 1 आया, 2 आया, 3 आया. 5 आने के लिए इट विल बी 4 आउट ऑफ 36. यू कैन चेक 5 कब आएगा, 4 1 3 2 2 3 1 4. मतलब ये जो कॉलम आ रहे हैं साइड वाले 4 1 3 2 2 3 4 1 4, ये 5 वाले. 6 कब आएगा, 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5, विच इज 5 आउट ऑफ 36. 7 इज द लार्जेस्ट टाइम आता है. कभी भी जब तुम 2 डाइस खेलते हो, सम 7 के ऑप्शन बहुत है. 6 1 हो सकता है, 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6. इसके ऑप्शन बहुत ज्यादा, दैट इज 6 आउट ऑफ 36. 6 के बाद अब वैल्यूज कम होती जाएगी फिर से. 8 आने के लिए 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6. तो वी हैव 5 ऑप्शन. 9 आने के लिए और कम हो जाएगा, 6 3 3 5 4 4 5 एंड 3 6, दैट इज 4 आउट ऑफ 36. 10 आने के लिए तीन ऑप्शन है, 6 4 5 5 एंड 4 6, 3 आउट ऑफ 36. 11 आने के लिए 6 5 और 5 6, वी हैव ओनली 2 ऑप्शन. और 12 आने के लिए एक ही ऑप्शन है, 6 6. इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न हुआ है. पैटर्न ये है कि अगर 2 से स्टार्ट करें, मतलब सम जो रहेगा, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज 2 से लेकर 12 तक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा 1 2 इंक्रीज होते रहेगा, 5 1 2 3 4 5 6.
6 के बाद यहाँ से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो याद रखना किसके लिए रहेगा, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। अब क्वेश्चन बोला वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसे पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर पी की वैल्यू मिलेगी, फिर एक्स पी का भी कॉलम चाहिए और एक्स स्क्वायर पी का भी कॉलम चाहिए। तो वी वांट दिस टू कॉलम एक्स पी भी और एक्स स्क्वायर पी भी। चलो विल राइट द वैल्यूज। द एक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. P probability 1 by 36, 2 by 36, 3 by 36, 4 by 36, 5 by 36, 6 by 36, 5 by 36, 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36 एंड 1 by 36। अब टेबल कंटिन्यू करेंगे, एक्स पी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 which is 2 by 36, 3 into 2 6 by 36, 4 3s are 12 by 36, 5 4s are 20 by 36, 6 5s are 30 by 36, 7 6 are 42 by 36, 8 5s are 9 4s are 10 3s are 11 2s are and 12 1s are। The next part is x का स्क्वायर करके फिर we'll have to multiply। 2 का स्क्वायर 4, 4 into 1 which is 4 by 36, 3 का स्क्वायर 9 2s are 4 का स्क्वायर 16 and 3s are 5 का स्क्वायर 25 into 4s are 6 का स्क्वायर 36 into 5s are 180। 7 का स्क्वायर 42 into 6 are 42 into 6, 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 7 का स्क्वायर is 49 into 6, 294। So it is 294 by 36। 8 का स्क्वायर 64 into 5, 320। 9 का स्क्वायर 36, 36 4, 9 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 6 बोल रहा हूँ। 9 का स्क्वायर इज 81, 81 4s are 324, 81 4s are 324। 10 का स्क्वायर 100 into 3, 300। 11 का स्क्वायर 121 into 2, 242। 12 का स्क्वायर इज 144। Now we'll find the addition of this and addition of this। इनका एडिशन निकालेंगे। So let's do addition। So here we calculated the two values, the addition of two values। The first one was xp का एडिशन में निकाल दिया और x square p का एडिशन में निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ sum of xp। Rather I will use the directly formula that e of x, which is expected value of x, which is sum of xp, and the second one is expected value of x square, which is sum of x square p। So sum of xp, which is 252 divided by 36, and the second one is summation of x square p is 1974 divided by
1974 divided by 36. So 252 divided by 36. 9 4s are 36. 9 2s are 18. 7 2 72. 9 8s are 4 and 28 completely cancel हो रहा 7. मतलब e of x we got 7 and e of x square पूरा कैंसिलेशन तो नहीं होगा, 2 से कैंसिल करते. 2 9s are 18. 2 9s are 18. 1 7 2 8s are 16. 1 4 2 7s are, and this is 2 1s are 2 8s are. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज तो निकाले, बट क्वेश्चन मुझे बोला था वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो, तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. वेरिएंस ऑफ एक्स इज e of x square minus e of x the whole square. E of x square is what? 987 divided by 18. E of x which is 7 the whole square. ठीक है, तो यहाँ पे 987 डिवाइड बाय 18 कंप्लीटली करेंगे. 987 डिवाइड बाय, दिस इज इन डेसिमल एंड 7 का स्क्वायर इज 49. तो आंसर आएगा 5.83. 833 एंड सो ऑन रहेगा, बट 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट सफिशिएंट है. तो दिस इज व्हाट वी हैव द वेरिएंस ऑफ x. This is what we have the variance of x. Now question number 15. A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15 and so on. These are the ages. If x denotes the age of a randomly selected student, find the probability distribution of x, find the mean and variance of x. Okay. So here I am making this table. What is x represent? X represent the age of a randomly selected student. यहाँ पे I will write x represent the age of the student. Age of student. Here we'll write x and here we'll write probability of x. Now अभी x represent the age. So सबसे minimum age क्या, वहां से start करेंगे. The minimum age is 14 and the maximum is 21. Maximum is what? 21. Here we'll write 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. Now we'll write the probability. कि अगर एज 14 है तो ऐसे कितने लोग हैं. टोटल 15 स्टूडेंट है, बट 14 एज के कितने लोग हैं? 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, 2. तो 14 एज के मेरे पास 2 लोग हैं, तो मतलब 2 आउट ऑफ 15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एज 14. 15 एज के कितने हैं? 1, एक ही है, तो इट इज 1 आउट ऑफ 15. 16 एज के कितने हैं? 1, 2, 2 which is 2 out of 15. 17 एज के 1, 2, 3, that is 3 out of 15. 18 एज के 1, 1. 19 एज के 1, 2, 2. 20 एज के 1, 2 and 3. And 21, 1. यहाँ पे मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है. अब क्वेश्चन में फाइंड द मीन एंड वेरिएंस. सो नाउ यू नोज हाउ टू डू. टेबल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो तुम्हें x और p मीन और वेरिएंस दोनों निकालना, तो यू विल हैव टू मेक 2 कॉलम्स मोर, xp एंड x स्क्वायर p. गेट द एडिशन ऑफ दीज 2. तो इससे तुम्हें मीन भी मिल जाएगा और वेरिएंस भी. मीन इज नथिंग बट e of x
तो जो तुम्हारा फर्स्ट आंसर रहेगा वही तुम्हारा मीन रहेगा, और जो सेकंड रहेगा विच इज वेरिएंस ऑफ एक्स, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला e of x square minus e of x the whole square, and that's your answer. So this is question number 15. Again बस टेबल फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है. दिस टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक बार टेबल बन गया तो आगे यू कैन कंटिन्यू. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Now the last question for this exercise. Question number 16. 70% of the members favor and 30% opposes a proposal in a meeting. The random variable x takes the value 0 if a member opposes the proposal, and the value 1 if a member is in favor. Find e of x and variance of x. ठीक है. तो अगर कोई भी प्रपोजल आता है तो कुछ मेंबर्स इन फेवर होते हैं, तो कुछ मेंबर अगेंस्ट भी रहते हैं और अपोज करते हैं. तो यहाँ पे समझो कोई भी प्रपोजल आया तो 70% फेवर करेंगे एंड 30% अपोज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे व्हाट इज x रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू. तो यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है, या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी. 0 रहेगी तो मेंबर अपोजेस, और 1 रहेगी तो मेंबर इज इन फेवर. तो यहाँ पे आई विल राइट x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो x की वैल्यू 0 एंड 1 है. 0 इज फॉर दोस इफ अ मेंबर अपोजेस द प्रपोजल. तो 0 अगर मैं लिखा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपोजेस करते प्रपोजल को, तो ऐसे कितने 30% है. तो 30% मतलब 30/100, which you can write as 0.3. 1 कब लेना, if a member is in favor. तो 1 अगर x की वैल्यू है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट कि जो प्रपोजल है वो फेवर कर रहे हैं. ऐसे कितने लोग हैं 70%. तो जहां पे 1 लिखेंगे वहां पे 70/100 विच इज 0.7. नाउ टेबल फॉर्म हो गया, इसमें तुम्हें e ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x दोनों निकालना है. तो टेबल कंटिन्यू करेंगे. xp एंड x स्क्वायर p. x की वैल्यू 0 एंड 1, p की वैल्यू 0.3 एंड 0.7, 0 and 0.7, again 0 and again 0.7. now sum of xp कितना है 0.7, sum of x square p is 0.7. here we'll write e of x which represents sum of xp which is 0.7. here I will write e of x square which is sum of x square p which is 0.7 again. क्वेश्चन पूछा था e of x निकालो. e of x ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है which is 0.7. वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है, and for that we need calculation. The formula e of x square minus e of x the whole square. e of x square is 0.7 and this is 0.7 the whole square. 0.7 0.49. तो 7 को 70 कर देते, 70 minus 49 it's 21. 0.21. so this is my what variance of x. so here we done with this exercise. now we are going to start with exercise 8.2 that is based on continuous distribution. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें जो x की वैल्यू रहती है वो एक रेंज में दी रहती है. रेंज मतलब इट इज फ्रॉम a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. मतलब इस फॉर्म में दी रहेगी. एज आई एम सेइंग x इज गिवन एज 1 लेस देन x लेस देन 7. तो इसका मतलब अगर x डिस्क्रीट होता तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऑल काउंटिंग नंबर. But if it is given as x
is not, so here we are dealing with continuous distribution. So continuous में मतलब basically यहाँ पे तुम्हें बस range दिया रहेगा, एक फर्स्ट वैल्यू रहेगी दैट रिप्रेजेंट ए एंड जो सेकंड वैल्यू रहेगी दैट रिप्रेजेंट बी। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ वैल्यूज ए से बी है, समझो फ्रॉम 1 to 7 है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे पास एक्स की बहुत सारी, वी कैन से इनफाइनाइट वैल्यूज रहेगी बिटवीन 1 to 7, 1 to 7, 1 2 3 4, ये तो डिस्क्रीट हुआ मतलब काउंटेबल, प्लस 1.2 1.22 1.2222 1.2379, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज रहेगी। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग बिटवीन द रेंज और बिटवीन द इंटरवल्स, बिटवीन द इंटरवल। तो जहां पे तुम्हारे पास रेंज दिया रहेगा या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वहां पे वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन, वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। तो तुम्हें कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक्स पता होने चाहिए जो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे तुम लोग को मैथ्स पार्ट 1 में एक चैप्टर ऑलरेडी है इंटीग्रेशन करके, काफी बड़ा चैप्टर वो भी, बट यहाँ पे तुम्हें मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो बेसिक क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन है x रेज टू n, एक ये तुम्हें पता होना चाहिए, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, इट्स x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आगे प्लस c भी लिखते हैं बट फिलहाल यहाँ पे तुम्हें प्लस c पे ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरा हुआ फर्स्ट फॉर्मूला, एंड एक सेकेंड फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है। और तीसरा फॉर्मूला 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x plus c, and the fourth formula, the last one, is 1/x square minus 1/x plus c। नहीं पढ़ना है, c का क्यों नहीं पढ़ना मैं I'll explain you later। वैसे c रहता है बट हमें इसमें नहीं पढ़ना है c, -1/x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 1 2 3 4, और एक बेसिक सबसे इजी फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो तुम्हें 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे हम लोग को इंटीग्रेशन लेना है। व्हाट वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, एक बार गो थ्रू कर लो। अब उसके बाद अभी मैं तुम्हें बता दूं इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इवैल्यूएट मतलब सॉल्व कैसे करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझो मैंने x रेज टू 5 लिखा, तो हमेशा 90% प्रॉब्लम में तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर दिखा तो अप्लाई करना है। अदरवाइज x का अगर पावर दिया तो विल हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, x रेज टू n। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर का क्या होता है x रेज टू n का, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मेरे केस में n की वैल्यू 5 है तो इट विल बी 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। द आंसर इज x रेज टू 6 अपॉन 6, दैट्स इट। सपोज x रेज टू -3 दिया है, पावर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो भी x रेज टू n ही यूज करना है। तो इट इज x रेज टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, इट इज x रेज टू -2 अपॉन -2। तो जब भी x का पावर दिखे यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। इफ आई एम राइटिंग x, अगर x लिखा तो भी पावर 1 है इसके पास, again you will use the first formula, x raised to 1 plus 1, that is 2 upon 2। so this is the basic formula for x raised to n का। और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएगा, 1/x लिख कर आएगा, 1/√x लिख कर आएगा, इसमें चेंजेस नहीं रहेगा। सिर्फ फर्स्ट वाले में x raised to n, तो n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं और यूजिंग द लिमिट कैसे करना वो सिखाता हूँ, ये अपने को इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द लिमिट। और एग्जाम में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 उसमें यही आने वाला है, यूजिंग द लिमिट। अब ये क्या होगा तुम्हारे पास यूजिंग द लिमिट, अगर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर dx और यहाँ पे मैंने लिमिट लिख दी 2 to 3, इस बार लिमिट्स भी आ गई है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, हाउ विल यू टेक इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट x स्क्वायर। तो रूल ये है x स्क्वायर है तो पावर ऐड होगा 2 + 1 3
अपॉन 3। एज वी नो द इंटीग्रेशन, पावर में हमेशा 1 ऐड करते हैं। लिमिट्स यहाँ लिख दो 2 to 3। अभी तो मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन लिया, अभी लिमिट सॉल्व करना बाकी है। लिमिट सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट डालेंगे, याद रखना पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट, मतलब x की जगह 3 डालेंगे, माइनस, एवरी टाइम माइनस। अब x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, दैट इज जहां भी x रहेगा वहां पे 2 डाल दो, दैट इज लोअर लिमिट इज 2। तो इट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब ये है, इंटीग्रेशन लेने के बाद हम लोग लिमिट्स इवैल्यूएट करेंगे। लिमिट्स इवैल्यूएट कैसे करना है? एक बार x की वैल्यू अपर डालेंगे, दैट इज 3, और फिर एक बार x की वैल्यू लोअर डालेंगे, दैट इज 2, और मिडल में वी हैव अ माइनस साइन, मिडल में वी हैव अ माइनस साइन। 3 का क्यूब, अब इवैल्यूएट करो, 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 3, एंड 2 का क्यूब इज 8 डिवाइड बाय 3। 27 minus 8 is 19/3, and that's my answer, that's my answer। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब और एग्जांपल सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। समझो मैंने लिमिट्स यहाँ पे नहीं लिखा, और मैंने एक नहीं बल्कि 2 टर्म लिए हैं, x⁻³ प्लस 5 टाइम्स ऑफ x²। ये 2 टर्म अब आगे एडिशन में। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना, तो इंटीग्रेशन में 2 टर्म में तो दोनों का सेपरेट लेंगे। तो फर्स्ट टर्म x³ इसका अलग इंटीग्रेशन लेंगे, और सेकेंड टर्म 5x² इसका अलग इंटीग्रेशन लेंगे। रूल ये है, जब भी इंटीग्रेशन लिखना तुम्हें साथ में dx लिखना है। dx का कुछ काम नहीं है, बट जब भी इंटीग्रेशन साइन रहेगा तो dx कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे x³ का इंटीग्रेशन लेना, यहाँ पे 5x² का। रूल ये है, जैसे मैंने डेरिवेटिव में सिखाया, अगर कोई नंबर है x के साथ तो नंबर को बाहर ले लेते हैं डेरिवेटिव में। तो इंटीग्रेशन में भी अगर कोई नंबर है तो उसको बाहर ले लेंगे। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। विल टेक इंटीग्रेशन, x³ का हो जाएगा x⁻³ + 1 4 अपॉन 4। 5 बाहर ही रहेगा एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन लेना है, विच इज एक ऐड होगा 3 अपॉन 3। ये मैंने 2 टर्म का इंटीग्रेशन सीखा। अब यूजिंग द लिमिट भी सिखा दो 2 टर्म। सपोज आई एम राइटिंग x² प्लस 2x² प्लस 5x, इसका इंटीग्रेशन लेना है, एंड लिमिट्स बोला है फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग इंटीग्रेशन। 2 टर्म दिया, दोनों का अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे। तो 2x² का अलग से लेंगे और 5x का अलग से लेंगे। तो 2x² बोला है, इट इज गिवन एज 2x²। सो 2 बाहर ले लेंगे, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 5 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x। इट इज फ्रॉम 1 to 2, इट इज फ्रॉम 1 to 2। तो 2 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन विल बी x³ अपॉन 3। 5 बाहर आ जाएगा, x⁻⁴ इसका इंटीग्रेशन है x⁻² डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन मैंने अलग से लिया और x का इंटीग्रेशन मैंने अलग से लिया। लिमिट्स दोनों के लिए सेम है, 1 to 2 है। तो एक काम करो, अभी लिखो मत, एंड में लिखेंगे हम लोग। तो फाइनली इट इज 2x³ / 3 and this is 5x² / 2। we got this integration 1 to 2। अब वैल्यूज को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मतलब यहाँ पे हम लोग भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार x की वैल्यू 2 डालेंगे विच इज माय अपर लिमिट, और फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे विच इज माय लोअर लिमिट। सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 5 into 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज माय अपर लिमिट, माइनस, नाउ विल सब्स्टिट्यूट इन लोअर लिमिट, 2 times of x which is 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 5 into 1 the whole square divided by 2। तो ये मेरा पूरा जो x है, एक बार अपर डालेंगे दैट इज 2, एक बार लोअर डालेंगे पूरे में x की जगह विच इज 1। सिंप्लीफाइड, 2 2 4 2 8 8 2 प्लस 2 2 4 5 20 डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट 2/3 प्लस 5/2 दैट इज लोअर लिमिट। 16 2 32
23 is 60 upon 6, 2 2 is 4, 5 3 is 15 divided by 6. So 60 plus 32, which is 92 by 6. 15 plus 4, 19 by 6. 12 minus 9 is 3, 8 minus 1 is 7. 73 by 6 and that's my answer. तो जब भी तुम्हारे पास लिमिट के साथ रहेगा तो हमेशा नॉर्मली सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन जैसा, फिर बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सब्स्टिट्यूट एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. So here if you have to check exercise start करते exercise 8.2 और यहाँ पे अगर अपने को चेक करना है कि गिवन फंक्शन पीडीएफ है कि नहीं. ऑलरेडी वी डन इन एक्सरसाइज 1 बट वो डिस्क्रीट था जिसमें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आता है. अगर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 है सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ व्हिच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी है बट समेशन है, बल्कि हियर इट विल बी इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, if it is equal to 1 दिया है so we can say that the given function is pdf. The given function is pdf. pdf stands for probability density function. Probability density function. What is probability density function? The sum of, sorry, the integration from a to b f of x dx is equal to 1. Integration from a to b f of x dx is equal to 1. This is first. और second, बस दो ही फॉर्मूले पढ़ने. Second पढ़ना है, if you want to calculate the probability between the limit a to b, अगर तुम्हें probability निकालना है between a to b, so the formula is it integration from a to b. तो जो भी तुम्हारे पास लोअर लिमिट रेंज रहेगा a to b वो लिमिट्स बन जाएगा f of x dx is equal to 1. तो ये दो प्रॉपर्टी पढ़नी है. Study these two properties. The first property is a to b f of x dx is equal to 1, and the second property is a और b अगर दो रेंज के बीच में अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी बोला निकालने के लिए. डिस्क्रीट में भी किए थे तो हम लोग क्या करते थे, ए और बी के बीच में जो बोलते थे कौन कौन सी वैल्यू फिट हो रही है टेबल में, जैसे 1 to 5 बोला है तो 1 2 3 4 5 उनको ऐड करते थे. बट यहाँ पे कैसा है, बस वो दो लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने के लिए पीडीएफ, कभी कभी इसको पीएमएफ भी बोलते हैं, तो चाहे पीडीएफ चेक करना हो या पीएमएफ चेक करना हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स मस्ट बी इक्वल टू 1. Now I shall start with exercise problem. Now let's start. Check whether each of the following function is a PDF. चेक करना है कि तुम्हारे पास जो फंक्शन दिया पीडीएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं. स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर पूरे का इंटीग्रेशन अगर 1 आ गया तो यस है, और अगर नहीं आया तो नहीं है. सो लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स दिया फंक्शन, बट फंक्शन दो दिए यहाँ पे, इट इज एक्स एंड द सेकेंड वन इज 2 माइनस एक्स. दो फंक्शंस दिए हैं और रेंज अलग अलग दिया, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड दूसरा दिया है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2. चेक करना पीडीएफ है कि नहीं है, तो वही पूरा इंटीग्रेशन निकालेंगे. तो हियर विल राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स. अगर इसका आंसर 1 आ गया तो यस ये है, और अगर नहीं आया तो नहीं है. बट प्रॉब्लम ये कि मेरे पास फंक्शन एक नहीं बल्कि दो दिए,
तो यहाँ पे आई विल डू द एडिशन ऑफ टू फंक्शन, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले फंक्शन जो दिया एफ ऑफ एक्स वो लिख के दिया है एक्स, रेंज दिया है 0 to 1, तो विल राइट 0 to 1, ये फर्स्ट फंक्शन। वी हैव वन मोर फंक्शन, वो फंक्शन दिया 2 - x, dx तो हमेशा लिखना है, बट उस फंक्शन का रेंज दिया है 1 to 2। अगर 3 होते तो विल डू वन मोर एडिशन, ठीक है। तो जितने टर्म्स रहेंगे उतना एडिशन करना है, अगर सिर्फ एक ही रहेगा तो फिर एडिशन नहीं, फिर जो दिया रहेगा बस उसका लिखना है। तो क्या फंक्शन दिया है वो लिखना है, dx तो कंपलसरी है, और इंटीग्रेशन का लिमिट जो दिया रहेगा आगे, हमेशा फंक्शन और लिमिट दोनों साथ में दिए रहेंगे। चलो इवेलुएट करो अलग अलग। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1 है तो 1 + 1 2 / 2, दैट इज x⁻n+1 अपॉन n+1। लिमिट्स 0 to 1 नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे दो टर्म है 2 - x, पहले 2 का लेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें 2 का इंटीग्रेशन लेना सपोज, तो 2 बाहर आ जाएगा, कोई भी नंबर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, याद रख लो। तो इसका मतलब अगर 2 रहा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। अगर समझो 3 होता तो अगेन 3 बाहर आता, इट इज 1 का अगेन इंटीग्रेशन x, मतलब 3x। तो कोई भी नंबर रहेगा उसका इंटीग्रेशन होता है नंबर विथ x, याद रख लो। वो नंबर लेकिन अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी x का टर्म नहीं होना चाहिए। दैट नंबर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साथ में x लग जाएगा, दैट्स इट। इफ यू वांट टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x, दो टर्म है तो 2 का इंटीग्रेशन विल बी 2x, 2x, 2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x, दूसरा x है और x का इंटीग्रेशन था x²/2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका लिमिट से 1 to 2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की वैल्यू 1 डालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, प्लस नाउ हियर x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2² / 2, माइनस x की वैल्यू 1 डालेंगे, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर इट्स 1/2, 0 का स्क्वायर 0, तो मतलब 1/2 इसका आंसर है कंप्लीट। 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, माइनस 2 1 ज़ा 2, 1/2, this is 1/2 plus 4 - 2 is 2, 2 2 ज़ा 4 - 1 is 3/2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 is 1/2, half plus half 1, that's it। अगर आंसर 1 आ गया तो we can say that the above function is a PDF, therefore the above function or the given function, yes, is a PDF। अगर आंसर 1 आ गया तो PDF है, अगर 1 नहीं आया, 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, then it's not a PDF। now we'll check for the second question। first हो गया, second question, इसमें f of x तुम्हारे पास एक ही फंक्शन दिया, दैट इज 2, और रेंज दिया है 0 <x <1। तो अच्छी बात है, हम लोग अगर चेक करना पीडीएफ है कि नहीं, तो हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a to b f of x dx। a to b लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, और फंक्शन एक ही दिया है 2, बट एक्चुअली 2 इज अ कांस्टेंट, आई कैन टेक आउट, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन आई कैन राइट एज x, तो 2x हो जाएगा आंसर पूरा। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो अपर लिमिट डालेंगे तो 2 × 1 2, और 0 डालेंगे तो 2 × 0 0, विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 - 0 इज नथिंग बट 2। तो अगर आंसर तुम्हारा 2 आ गया तो वी कैन से दैट कि ये पीडीएफ नहीं है, क्योंकि आंसर 2 आ गया। देयरफॉर द गिवन फंक्शन is not a PDF। The given function is not a PDF, ठीक है। Now let's do the second question।
इसमें फंक्शंस दिया है, इसमें पीडीएफ नहीं चेक करना, बस क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ, ऑलरेडी पीडीएफ दिया है। 0 to 4 के बीच में एक फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन 0 दिया अदरवाइज। तो जो अदरवाइज रहता है मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो 0 है तो उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब मुझे जो भी कुछ करना है 0 to 4 के बीच में करना है, रेंज फ्रॉम x and 8। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा जो फंक्शन इट स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड विथ 4 है, तो यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ फॉर योर सिंप्लिसिटी। तो मेरे पास जो वैल्यूज दी है, x की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंडिंग विथ 4, मतलब 0 to 4 के बीच में इवेल्युएट करना है मुझे। मतलब मेरा फंक्शन के लिए जो लिमिट्स दिया है बिटवीन दीज टू ओनली, 0 to 4 के बीच में जाना है, 0 से लेस नहीं जाएंगे और 4 के अबव नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट बोला प्रोबेबिलिटी निकालना x लेस देन 1.5, बट बिफोर स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी मैं तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मुला लिख के दे रहा हूँ जो कि मैंने सेकंड फॉर्मुला दिया था। a to b के बीच में अगर तुम्हें निकालना है, चाहे अगर इक्वल टू रहे या न रहे, समझो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू नहीं भी दिया है, इक्वल टू नहीं दिया बट a to b, बस इतना ही बोला प्रोबेबिलिटी। और ये बोला गया कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि रेंज दिया है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। और बोला प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रूल ये है जो दो लिमिट रहेगी, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, तो वो a और b लिमिट यहाँ पे लिख देंगे और फंक्शन जो भी दिया रहेगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे, दैट्स इट व्हाट आई सेड। तुम्हें जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना तो बिटवीन द टू लिमिट्स, तो तुम्हें a और b पता होना चाहिए, वो a और b के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना x लेस देन 1.5, मतलब x की वैल्यू बोला है लेस देन 1.5। 1.5 समवेयर यहाँ पर आएगा, समझिए दिस इज 1.5, लेस बोला मतलब 1.5 से लेस। बट कहां से कहां तक निकालेंगे, तो सिर्फ 0 से लेके 1.5, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है ना। तो इसका मतलब x लेस देन 1.5 आई कैन रीराइट एज 0 लेस देन x लेस देन 1.5। सो वी विल इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 1.5, ठीक है। तो लेस देन 1.5 मतलब 1.5 से लेस, बट कहां तक जाएंगे, 0 तक, बिकॉज वी हैव अ स्टार्ट लिमिट ऑफ 0। So now do this integration 0 1.5, that is 0 to 1.5 and it is x by 8, मतलब जो फंक्शन रहेगा वो dx। तो जो लिमिट्स वो लिख देंगे और जो फंक्शन रहेगा वो लिख देंगे। नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन। 1/8 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट हमेशा मतलब मल्टीपल x का जो भी रहेगा बाहर ले लेंगे। 0 to 1.5 विल इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन इज x square by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट्स 0 and 1.5। जैसे इंटीग्रेशन ले लेंगे ना, लिमिट्स को दूसरे साइड लिख देना। अब लिमिट्स लेना, इंटीग्रेशन तो हो चुका है। एक बार 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड देन 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1/1.5 का स्क्वायर 2.25 डिवाइड बाय 2 और 0 का स्क्वायर 0 होता है। नाउ चाहो तो डेसिमल में कैलकुलेट करो या तो फ्रैक्शन में, दोनों वेज चलेगा। 2.25 इज नथिंग बट 225 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, दैट इज 200। तो 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 5s are 5 8s are 5 9s are 9/8, और आगे 1/8 भी है, तो it is 9/8, 8s are 64, 9/64 is my answer for the first question between x less than 1.5। सेकेंड क्वेश्चन में भी अगेन प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, but this time it is given as probability from 1 to 2। already they have mentioned कि किसके बीच में निकालना है, तो डायरेक्टली विल इंटीग्रेट बिटवीन 1 to 2। फंक्शंस तुम्हारा x by 8 है, और इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही नॉर्मली एक ही फंक्शन दिया रहता है x by 8। अगेन विल डू द सेम थिंग, 1/8 बाहर आ जाएगा, रिपीटेटिव। नाउ x का इंटीग्रेशन लेना है, x का इंटीग्रेशन मतलब पावर में 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, 1 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर डालेंगे 2, 2 का स्क्वायर और लोअर डालेंगे दैट इज 1 का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन, तो इट्स 1/8। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2।
2 2s are 4 minus 1, 3 by 2, which is 3 by 16. That's my answer for the second question. Now we'll do the third question. ग्रेटर देन 2 बोला है, मतलब 2 से ग्रेटर, एक ही लिमिट है 2 से ग्रेटर, बट कहां तक जाएंगे? विल गो टिल 4, बिकॉज मेरा एंड 4 पे ही हो रहा ना, तो 2 से ग्रेटर तो मैं स्टार्ट कर चुका, बट विल हैव टू एंड एट 4. So for the third question, it is given as probability of x is greater than 2. मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, बट कहां तक जाएंगे? till 4, because we have a limit till 4. Here we'll write 2 less than x less than 4, मतलब 2 से ग्रेटर है बट 4 पे एंड होगा, तो between 2 to 4 निकालना है. तो it is will integrate between 2 to 4 the function x by 8 dx. Again the same way repetitive चीज, बस लिमिट चेंज हो गया 2 to 4. 1 by 8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x लेना बाकी है अभी. नाउ विल टेक इंटीग्रेशन 1 by 8. x का इंटीग्रेशन होता है x square by 2 between 2 to 4. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 4 डालेंगे दैट इज 4 का स्क्वायर, और एक बार 2 डालेंगे विच इज 2 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर इज 4. 16 by 2 is 8, 4 by 2 is 2. 8 minus 2, 6. 6 by 8, 2 3s are 2 4s are, which is 3 by 4. ठीक है, so this is the way of solving. ठीक है, we'll end up over here.